ایسا شہر جس کی آبادی 1,00,000 سے بھی زیادہ تھی۔ کئی سال اور کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ یونس فیصلہ کر چکی تھی اور اب اللہ کی طرف سے بھی فیصلے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ یہ قوم نینوا تھی۔ نینوا آشوری سلطنت کا سب سے بڑا شہر تھا۔ ایسا شہر جس کی آبادی 1,00,000 سے بھی زیادہ تھی۔ مضبوط فصلیں، وسیع بازار، کھیت، قافلے، تجارت، دولت، سب کچھ موجود تھا۔ یہ کوئی سنسان بستی نہیں تھی، یہ ایک آباد، خوشحال اور طاقتور شہر تھا۔ بھیا کپڑے کا کیا بھاؤ ہے؟ جلدی کرو، آگے بڑھو، پہنچ گئے؟ ہاں آخر کر۔ آشوری قوم جنگجو تھی، سخت دل تھی، طاقت پر یقین رکھتی تھی۔ اے عظیم دیوتا، ہماری قربانی قبول فرما، ہم تیرے بندے ہیں، ہم پر رحم ان کر۔ کی فوج منظم، لوہے کے ہتھیار، رتھ اور مضبوط بادشاہت پر مشتمل تھی۔ وہ اپنی فتوحات کو اللہ کی نہیں بلکہ اپنی معبودوں کی رضا سمجھتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا آشور، جسے وہ قوم کا محافظ، بادشاہت دینے والا اور جنگ میں فتح دلانے والا مانتے تھے۔ جنگ سے پہلے آشور کے نام پر دعائیں ہوتی، قربانی دی جاتی، بادشاہ خود کو آشور کا منتخب کہتا۔ ہماری قربانی قبول فرما۔ پھر تھا اشتر، جسے وہ محبت، اولاد اور جنگ اور طاقت کی دیوی مانتے تھے۔ اور پھر تھا شمس، جسے وہ انصاف، قانون اور سچ کا دیوتا کہتے تھے۔ عدالتوں میں فیصلے شمس کے نام پر ہوتے اور قسمیں شمس کو گواہ بنا کر کھائی جاتی۔ جنگ کے لیے الگ معبود، محبت کے لیے الگ اور انصاف کے لیے الگ معبود تھا۔ یہ سب کچھ کھلا شرک تھا، لیکن مسئلہ صرف بت پرستی نہیں، اصل مسئلہ دلوں کی گمراہی تھا۔ اور تخت پر ایک آشوری بادشاہ بیٹھا تھا، ظاہری طور پر طاقتور تھا، ہزاروں سپاہیوں کا سردار، جس کا ایک حکم زندگی اور موت بن جاتا تھا۔ یہ بادشاہ خوف کے ذریعے حکومت کرتا، ظلم کو طاقت سمجھتا اور خود کو دیوتاؤں کا نمائندہ جانتا تھا۔ مگر اس طاقت کے پیچھے ایک چھپا ہوا خوف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی سلطنت عدل پر نہیں بلکہ ظلم پر کھڑی ہے۔ زلزلے، وبائیں اور بے چین خواب اس کے دل میں کسی آنے والے انجام کی دستخط تھے۔ یہ وہ بادشاہ تھا جو دوسروں کو ڈرا کر خود ڈر میں جیتا تھا۔ ظلم، خوف کے الفاظ، اور نینوا خاموشی سے کسی فیصلے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی تاریخی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل کی۔ پھر ایک دن نینوا کی بلند فصیلوں کے باہر ایک خاموش قدم آ کر رکا۔ نہ شاہی جلوس، نہ سپاہیوں کی قطار، نہ ڈھول، نہ اعلان، صرف ایک انسان اور اس کے سینے میں اللہ کا ایماندار پیغام۔ حضرت یونس علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم، با اخلاق اور صابر نبی تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے اور نسبتاً بنی اسرائیل میں سے تھے۔
बाइबल में आप को जोना के नाम से जाना जाता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम हजरत हूद और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बाद तशरीफ लाए और इनसे पहले भी बनी इसराइल में कई अनबिया गुजर चुके थे। आपको अल्लाह ताला ने आशूरी सल्तनत के अजीम शहर नैनवा यानी कौम नैनवा की तरफ नबी बनाकर भेजा। हजरत यूनुस आला इखलाक, आजिज़ी, मोहब्बत और सच्चाई की जिंदा मिसाल थे। हजरत यूनुस नैनवा में दाखिल हुए। वो इन गलियों से गुजरे जहां जुल्म मामूल बन चुका था। जहां ताकतवर बेखौफ था और कमजोर की आवाज दीवारों में दफन हो जाती थी। ताकतवर कमजोर को कुचलता था। नाइंसाफी मामूल बन चुकी थी। अब जाओ यहाँ से, निकालो जो कुछ भी तुम्हारे पास है। ताजिर नाप तोल में धोखा देते। ना, बहुत ज्यादा हैं, 5 दो, तुम इसे छो नहीं सकते। तुम झूठ बोल रहे हो, ये मेरा है। सच बोलने वाला बेवकूफ समझा जाता। घरों के दरवाजे मजबूत थे मगर दिल सख्त हो चुके थे। हर शख्स सिर्फ अपने फायदे की फिक्र में था। बुतों के सामने सजदे थे मगर रब की पहचान नहीं थी। जुबानों में दुआएं थी मगर अमाल अंधेरों में डूबे हुए थे। गुनाह को बुरा समझना खत्म हो चुका था और जुल्म आम हो गया था। ये था नैनवा, एक जिंदा शहर मगर मुर्दा ज़मीरों के साथ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बाजार में आकर रुक गए। लोग मतवज्जा हुए, कुछ हैरत से और कुछ तमस्खुर से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को देखने लगे। फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कलाम किया, ना बुलंद आवाज में, ना धमकी के लहजे में, बल्कि सच्चाई के वकार के साथ। ए मेरी कौम, अल्लाह से डरो, जुल्म छोड़ दो और इसकी तरफ लौट आओ, इससे पहले कि मोहलत खत्म हो जाए। और उसकी तरफ लौट आओ, इससे पहले कि मोहलत खत्म हो जाए। बाजार का शोर लम्हे भर को थम गया। चंद सांसों तक खामोशी रही। फिर कह के गूंज उठे और तंज ने जगह ले ली और इनकार वापस लौट आया। कोई हंसा और कोई बोला, हम ताकतवर हैं, हमें कौन रोक सकता है। हजरत यूनुस ने निगाह हटाई और आगे बढ़ गए। शायद ये खुदा की तरफ से है। गली से गली, दरवाजे से दरवाजे, हर जगह एक ही पैगाम और तकरीबन एक ही रद्द अमल था। लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ना ही रुके और ना ही मायूस हुए, क्योंकि नबी का काम लोगों से मनवाना नहीं होता बल्कि अल्लाह का पैगाम पहुंचाना होता है। नैनवा अपनी मसरूफियात में इस कदर गुम था कि उसे खबर भी ना हुई कि ये खामोश आमद इसकी तारीख का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। यहाँ के लोग शिर्क और गुनाहों में मुकम्मल तौर पर डूब चुके थे। नैनवा की बस्ती जहाँ तकरीबन 1,20,000 से भी ज्यादा इंसान थे, लेकिन वो सब के सब कुफर में डूब चुके थे। ईमान लाने वाला कोई भी नहीं था। हजरत यूनुस का पैगाम एक और वाज़ेह था, ए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। मगर लोग माने नहीं। उन्होंने कहा ये दुनिया आर्जी है और आखिरत हमेशा के लिए है, मगर लोग माने नहीं। उन्होंने मजाक उड़ाया, इल्जामात लगाए, आपको झूठा कहा, आपका मजाक बनाया, आपकी बातों को ठुकराया। लेकिन नबी नहीं रुके, क्योंकि यही नबी का रास्ता है और यही हक का। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कई साल तक मुसलसल दावत देते रहे। कई साल और कोई भी ईमान नहीं लाया। उन्होंने हर एक को पुकारा, अमीर, गरीब, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत, सबको। कोई भी नहीं सुनता था, मगर वो फिर भी डटे रहे। ये सब देखकर एक नबी का दिल हर रोज टूटता था। यही वो कौम थी जिसे बचाने के लिए अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा था। ये माहौल था जहाँ कौम बुराई में डूबी हुई थी और नबी दावत में थके हुए थे। ये दावत गुस्से में नहीं थी, ये दावत दर्द में डूबी हुई थी। यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। ऐ मेरी कौम,
मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाने आया हूँ। पलट आओ। यही हमारे मुहाफिज हैं, यही हमें बचाते हैं। ये हमें हमारे माबूदों से दूर करना चाहता है। इसकी बातों में कुछ नहीं। ये हमें हमारे माबूदों से डराता है। ये हमारे बुजुर्गों को गलत कहता है। इसकी बातों पर यकीन ना करो। वो लम्हे थे जब सच सामने था और इनकार भी। यही हमारे मुहाफिज हैं, यही हमें बचाते हैं। ये हमें हमारे माबूदों से दूर करना चाहता है। ये हमें डराता है, कहानियां सुनाता है। अगर अजाब आना होता तो अब तक आ चुका होता। जब हक बार बार सामने आए और इंसान जानबूझकर मुंह मोड़ ले तो इसे इनकार कहते हैं, और कौम यूनुस इस मकाम में तुम्हारी खड़ी बात नहीं थी। सुनेंगे। देखो इस पगल को, ये कहता है कि खुदा ने इसे भेजा है। यहाँ से चले जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, निकलो यहाँ से। ए नैनवा के लोगों, सीधे रास्ते की तरफ पलट आओ। बेशक कामयाबी हिदायत में है। देखो देखो, झूठा पैगंबर आया है। जाओ, हमें तुम्हारी नसीहत नहीं चाहिए। अल्लाह की रहमत और हिदायत की तरफ आओ, जिंदगी इसी में है। हर नबी यही कहता है। कुछ नहीं होने वाला, तभी यही करते थे। हम पर कभी अजाब नहीं आया। अगर अल्लाह नाराज होता तो अब तक हो चुका होता। ये फिर आ गया समझाने। अगर अल्लाह नाराज होता तो अब तक हो चुका होता। ये फिर आ गया समझाने। हम खुशहाल हैं, हमें क्या जरूरत। फिर आ गया समझाने। इसकी बातों में कुछ नहीं। हम खुशहाल हैं, हमें क्या जरूरत। अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिसकी धमकी देते हो। हमने तुम्हारी बातें सुन ली, अब हमें अपने हाल पर छोड़ दो। हमारे माबूदों से डराता है। ये हमारे बुजुर्गों को गलत कहता है। इसकी बातों पर यकीन कौम न करो। यूनुस फैसला कर चुकी थी और अब अल्लाह की तरफ से भी फैसले का वक्त करीब आ रहा था। ये वो लम्हा था जब आखिरी मोहलत दे दी गई।